Good morning, students. Today I am going to explain lesson 3 Discovering Tut. The saga continues. टूट की तलाश वीर गाथा जारी है। इससे पहले 3 वीडियो में हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया है। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase is scanning the mummies with a portable machines donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving really ahead of his countrymen. उसकी प्रसिद्धि और उसके भाग्य के प्रति अनुमान पर ध्यान दिए बगैर भी टूट मिस्र की कई ममियों में से एक है। कितनी कोई नहीं जानता। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जिसने 2003 के आखिर में एक खोज शुरू की, उसने अभी तक 600 ममी रिकॉर्ड की है और अभी भी गिनती जारी है। उसका अगला चरण ममीज की स्कैनिंग, एक चलित सीटी मशीन जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी व उसके उत्पादक साइमंस ने दान की थी। राजा टूट कई अन्य ममियों में प्रथम है। उसका स्कैन किया जाएगा। उसकी मृत्यु, जैसा कि जीवन में भी, शाही रूप में अपने देशवासियों को शान से भी आगे। A city machine scanned the mummy's head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on airy details in the resulting image. With Tut's entire body similarity recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that he winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. एक सीटी स्कैन मशीन ने मम्मी का सिर से पैर तक का स्कैनिंग किया और अनुप्रस्थ काट में 1700 डिजिटल एक्सरे चित्र बनाए। टूट के शरीर की स्कैनिंग 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस में की गई ताकि उसके जटिल ढांचे का विस्तृत वर्णन दे सके। टूट के शरीर का इसी प्रकार रिकॉर्ड किया गया और रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और शरीर रचना के विशेषज्ञों ने उसके रहस्यों की जांच शुरू की, जिसकी मढ़ी हुई शव पेटी की परियों की देवियों ने इतने दिनों तक सुरक्षा की थी। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearers. They climbed a ramp and a flight of stairs into the sizzling sand outside, then rose on a hydraulic um, hydro hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1,000,000 scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. स्कैन को रात्रि को मजदूर लोग टूट के उसकी कब्र से उसकी पेटी में रखकर चले। आरती उठाने वालों की तरह वे एक रैंप पर व सीढ़ियों की ऊंचाई से चले, जबकि बाहर रेत फैल रही थी। फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से एक ट्रेलर पर, जिसमें स्कैनर था, लेकर गए। 20 मिनट बाद दो व्यक्ति उभरे, पास के ऑफिस में तेजी से दौड़ कर गए और एक जोड़ी सफेद प्लास्टिक के 2 पंखे लेकर आए। लाखों डॉलर के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि एक कूलर फैन में रेत घुस गई थी। फेरो का अभिशाप, एक गार्ड ने निराशा से कहा। Eventually, the
Titute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had led him so long ago. अंततः अतिरिक्त पंखों ने अच्छी तरह काम किया और सारी कार्रवाई समाप्त हुई, पूरी तरह सुनिश्चित कर कि कोई डाटा बाकी नहीं है। टेक्नीशियनों ने टुटकी मजदूरों को हवाले किया जो उसे उसकी कब्र तक वापस ले गए। 3 से कम घंटों के पश्चात टुट को कफन से अलग किया गया और फेरो फिर शांति से वहीं आराम फरमाने लगे जहां उसे इतने वर्षों पूर्व अंत्येष्टि के पुरोहितों ने यहाँ रखा था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an एनाटॉमी क्लास। पीछे ट्रेलर में एक फिक्सिंग ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट की आश्चर्यजनक आकृतियां दिखाई। पिक्सल्स के छिद्रों से एक भूरे सिर ने आकृति ली और टेक्नीशियन ने उसे हर दिशा में घुमाया। गर्दन की रीढ़ की हड्डियों की तरफ का दृश्य शरीर रचना शास्त्र की तरह स्पष्ट आया। Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back in the chair, Jahi Abbas smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. अन्य प्रतिकृतियों ने एक हाथ पसलियों के केस के कई दृश्य और एक सिर की खोपड़ी के दृश्य दिखाए, किंतु अब तक दबाव दूर हो चुका था। अपनी कुर्सी में पुनः बैठकर जो ही आवाज मुस्कुराए, वे इस बात से राहत पाए दिख रहे थे कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ है। मैं पिछली रात 1 सेकंड भी नहीं सोया, उन्होंने कहा। मैं इतना चिंतित था, किंतु अब मैं सोचता हूँ कि मैं सो पाऊंगा। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. हमारे ट्रेलर के छोड़ने के वक्त, धातु की सीढ़ियों के उतरने के वक्त हवा रुक गई थी। शीत ऋतु की हवा ठंडी थी और स्थिर थी, मौन के समान थी इस मृत लोगों की वादी में। टुट को कब्र के प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियन खड़ा था, वह तारों का समूह जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे, हमारी बाद की जिंदगी के देवता जो इस बालक राजा को देख रहे थे। तो ये आप लोगों की स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है और ये टुट की मम्मी को निकाल के उसका सर्वेक्षण किया गया है और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।